ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زریز خانزادہ خاندان کا سب سے سخت مزاج، خاموش اور مغرور مرد تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ایسی سنجیدگی طاری رہتی جیسے دنیا کا ہر شخص اس سے کوئی قصور کر چکا ہو۔ پورے خاندان میں اس کے نام سے ہی لوگ سہم جاتے تھے۔ گھر کی عورتیں اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہی چپ ہو جاتی اور بچے بھاگ کر کمروں میں گھس جاتے، اور ابیہا، وہ تو اس کے سامنے آتے ہی گم سم ہو جاتی تھی جیسے کسی نے اس کی زبان قفل کر دی ہو۔ بچپن سے ہی وہ زریز کو ایک پراسرار شخص کے طور پر جانتی تھی، نہ مسکراتا نہ بات کرتا، بس اپنی آنکھوں سے لوگوں کے دلوں میں خوف اتار دیتا۔ ابیہا کا زریز سے رشتہ صرف اتنا تھا کہ وہ اس کے چچا زاد کی بیٹی تھی، مگر ان کے درمیان ہمیشہ ایک انجانی دیوار رہی۔ زریز کے رویے میں ایسی سختی تھی کہ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل میں کسی عورت کے لیے کوئی نرم گوشہ ہو سکتا ہے۔ خاندان والے تو یہاں تک کہتے تھے زریز کو عورتوں سے الرجی ہے، اور وہ بات ہنسی میں اڑا دیا کرتا، مگر اندر کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ ابیہا کی معصومیت اسے کمزور بنا دیتی ہے۔ اس روز حویلی میں شور تھا۔ ابیہا کے ماں باپ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے اور پورا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابیہا کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، جیسے وہ رو بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دکھ جتا رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک سناٹا تھا۔ زریز دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتا، کہتا رو لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے لبوں پر خاموشی کا قفل تھا۔ ایگو، وہی زہریلی ایگو جس نے اس کے دل میں پنپنے والی نرمی کو ہمیشہ قید رکھا۔ خالہ صغرا بیگم جو خاندان کی بڑی تھی، وہ چیختی ہوئی بولی، اب یہ یتیم لڑکی کہاں جائے گی؟ کوئی ہے جو اس کی ذمہ داری اٹھائے؟ سب خاموش۔ زریز کے چہرے پر ایک لمحے کو کچھ بدلا، مگر پھر وہ سیدھا ہو گیا۔ خالہ نے طنزیہ نظر سے زریز کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں تو عورتوں سے نفرت ہے نا؟ اب دیکھو تمہارے گھر کی اکیلی لڑکی رہ گئی ہے۔ ابیہا نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں ایک لمحے کو امید جاگی تھی کہ شاید زریز بولے گا، مگر وہ خاموش رہا۔ رات ڈھل گئی، سب لوگ جا چکے تھے۔ ابیہا تنہا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرے پر مایوسی کی لکیر تھی۔ باہر شہر میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونکی۔ دروازہ کھلا تو زریز کھڑا تھا۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے خشک لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ کھانا کھا لو۔ بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہو یا نہ ہو، کمزور مت بنو۔ دنیا کمزوروں پر ترس نہیں کھاتی، ان پر ہنستی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوا، مگر اس کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ چاہتا تھا کچھ اور کہے، مگر زبان ساتھ نہ دیتی۔ 2 دن بعد خاندان کے مرد جمع ہوئے۔ ابیہا کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ خالہ صغرا نے صاف الفاظ میں کہا، ہم اسے یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اکبر خان کے بیٹے کے والد نے رشتہ بھیجا ہے۔ آدمی بڑا مالدار ہے، مگر عمر زیادہ ہے۔ لڑکی کو عزت سے گھر بسانا چاہیے۔ ابیہا نے چونک کر دیکھا۔ بوڑھا ہے وہ، آہستہ سے بولی، زبان سنبھال کر بات کرو۔ خالہ اسے جھڑک گئی۔ یتیم لڑکیوں کے زیادہ نخرے اچھے نہیں لگتے۔ زریز دروازے پر کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ دل چاہا وہ دھاڑ کر بولے، مگر پھر وہی ضبط، وہی انا آڑے آ گئی۔ اگلی صبح ابیہا کی سہیلی سعدیہ دوڑتی ہوئی آئی۔ ابیہا، خالہ نے بڈھے سے تمہاری شادی پکی کر دی ہے۔ ابیہا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ رہی ہیں کل نکاح ہوگا، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابیہا کی آنکھوں میں بے بسی تیرنے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی صحن میں نکلی اور وہاں زریز کھڑا تھا۔ تم نے سنا؟ وہ لوگ مجھے کسی بڈھے سے شادی کروا رہے ہیں، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ زریز کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ کس نے کہا؟ تم سے کسی نے پوچھا بھی ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا مجھ سے، سب اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ آپ تو سب سے طاقتور ہیں، پھر آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ وہ چپ رہا۔ ایگو، خوف یا جذبہ، کچھ بھی تھا، مگر وہ بول نہ سکا۔
ابیہا کے آنسو بہنے لگے۔ ٹھیک ہے، مت بولیے، شاید آپ کے لیے میں بھی ایک غیر ہوں۔ وہ پلٹنے لگی تو پیچھے سے گرجدار آواز سنائی دی، خبردار، کسی نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا۔ سارا صحن خاموش ہو گیا۔ سب نے چونک کر زریز کی طرف دیکھا۔ خالہ صغرا غصے سے بولی، تو پھر کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ زریز کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میں؟ کیا مطلب؟ میں اسے اپنی دلہن بناؤں گا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ابیہا نے ہونک نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زریز کے الفاظ اس کے دل میں گونج رہے تھے۔ رات کے وقت جب نکاح ہو چکا تھا، ابیہا سفید لباس میں چپ چاپ بیٹھی تھی۔ نہ وہ روئی اور نہ ہی کچھ بولی، صرف خاموشی تھی، اور وہ خاموشی اس کے دل کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ دروازہ ہلکا سا چرچرایا۔ زریز اندر آیا۔ کمرے میں خوشبو پھیلی۔ وہ کچھ لمحے دروازے کے قریب رکا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ زریز چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم اتنی خوبصورت ہو کہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کے قریب جھک آیا، اتنا قریب کہ ابیہا کی سانسیں الجھنے لگیں اور دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ یہ فیصلہ تمہارے لیے نہیں، شاید میرے لیے ضروری تھا، وہ مدھم آواز میں بولا۔ ابیہا کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ مگر آپ کو تو عورتوں سے نفرت ہے نا؟ زریز کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں تھی، شاید تب تک جب تک تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے اندر ایک نیا رشتہ سانس لے رہا تھا۔ رات گزر چکی تھی۔ صبح کے دھندلکے میں حویلی کے صحن میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ابیہا نے نیند بھری آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ کمرے کے کونے میں زریز خانزادہ سفید کرتا پہنے بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، سخت مگر پرسکون چہرہ۔ کل رات کے الفاظ ابیہا کے ذہن میں گونج رہے تھے، شاید تب تک جب تک تم میری زندگی میں نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ سنجیدگی تھی یا کوئی کمزور لمحہ۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ پاؤں زمین پر رکھتے ہی زریز نے نظریں اٹھائیں۔ جاگ گئی تم؟ جی۔ ناشتہ نیچے لگا ہوا ہے، میں خود بنا لوں گی۔ ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ وہی سر تھا۔ ابیہا نے نظریں جھکائیں۔ دل چاہا کچھ کہے، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ شخص بات کم اور حکم زیادہ دیتا ہے۔ نیچے دالان میں خاندان کی عورتیں بیٹھی سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ دیکھا، آخرکار زریز بھی پھنسا۔ ہاں، مگر بیچاری لڑکی کا کیا قصور؟ تقدیر نے عجیب موڑ لیا۔ ان کی باتیں ابیہا کے کانوں تک پہنچی تو اس نے سر جھکا لیا۔ اسے لگا جیسے سب کی نگاہیں اس پر ہیں، جسے وہ کسی جرم کی سزا بھگت رہی ہو۔ زریز اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، جو کہنا ہے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں، مگر تمہارے پاس اختیار ہے کہ ان کی باتوں کو اثر انداز ہونے دو یا نہیں۔ ابیہا نے چونک کر دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کے لہجے میں سختی کے بجائے نرمی محسوس کی۔ میں کوشش کروں گی، بس یہی کافی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ حویلی کی زندگی اپنے معمول پر آنے لگی، مگر ابیہا کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ نہ وہ کسی کی بیٹی رہی تھی، نہ کسی کا بوجھ۔ اب وہ زریز کی بیوی تھی۔ زریز کا رویہ عجیب تھا، نہ وہ مکمل فاصلہ رکھتا، نہ مکمل قربت۔ کبھی اچانک کچھ لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر نرمی چھا جاتی اور پھر وہ خود پیچھے ہٹ جاتا، گویا اپنے جذبے سے خوف زدہ ہو۔ ایک دن شام کو آنگن میں بارش ہونے لگی۔ ابیہا چھت سے گرتے پانی کو دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ گیلی نہ ہونا، سردی لگ جائے گی۔ مجھے بارش پسند ہے، وہ مسکرائی تو زریز لمحہ بھر کو رکا، پھر ہلکا سا بولا، پہلی بار تمہیں ہنستے دیکھا ہے۔ ہنسی تو تب آتی ہے جب دل ہلکا ہو، وہ بولی، یہاں تو سب کچھ بوجھ سا لگتا ہے۔ زریز خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، وقت لگتا ہے مگر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر مڑنا چاہا، مگر ابیہا کی آواز نے اسے روک لیا۔ کیا آپ واقعی ٹھیک ہیں؟ زریز نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر جو طوفان ہے وہ کب رکے گا؟
वो लम्हा भर के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, जब कोई तूफान अंदर बरसों से हो तो उसे रोकने के लिए कोई एक लम्हा काफी नहीं होता। बारिश और तेज हो गई। अबीहा ने सर झुका लिया। ये पहला मौका था जब जुरेज ने अपने अंदर के किसी राज की झलक दिखाई थी। रात को कमरे में खामोशी थी। अबीहा बिस्तर के किनारे बैठी सिलाइयां समेट रही थी। जुरेज कमरे में दाखिल हुआ। अभी तक जाग रही हो? नींद नहीं आ रही? क्यों? पता नहीं, शायद खौफ है। किस बात का? आपके मिजाज का। जुरेज एक लम्हे को रुका, फिर धीरे से बोला, मैं डराता नहीं हूं, बस समझ नहीं पाता कि जज्बात को कैसे जाहिर करूं। फिर भी आपके करीब आते ही दिल घबरा जाता है। वो मुस्कुराया, पहली बार। शायद तुम दिल से बहुत साफ हो, इसीलिए सब महसूस कर लेती हो। अबीहा की आंखों में हल्की चमक उभरी। तो क्या आप वाकई मुझे कबूल करते हैं? दिल से? जुरेज के चेहरे पर वही सख्ती वापस आ गई। कबूल किया है तो अब सवाल क्यों? अबीहा के लब कपकपा गए। मैंने सोचा शायद आपने मुझ पर तरस खाकर शादी की हो। तरस? वो तेज लहजे में बोला, मैं किसी पर तरस नहीं खाता, मैंने फैसला सोच समझ कर किया है। वो उठकर खिड़की के पास चला गया। हवा के झोंके में उसके चेहरे की सख्ती छुप ना सकी। दिल चाहा कि पलट कर कहे, मैंने तुम्हें चाहा है, तरस नहीं खाया। मगर ईगो ने जबान पर कुफल डाल दिया। अबीहा के आंसू चुपके से गालों पर बह गए। आपके अल्फाज हमेशा इतने सख्त क्यों होते हैं जुरेज? क्योंकि मैं नरम अल्फाज से डरता हूं। वो धीरे से बोला, नरमी कमजोरी बन जाती है और मैं कमजोर नहीं बनना चाहता। अगली सुबह हवेली में एक नया शोर था। खाला सुगरा अब भी उससे शादी से नाखुश थी। वो दूसरे कमरे में बैठी अबीहा पर तंज के तीर बरसा रही थी। वाह बेटी, किस्मत भी अजब चीज है, यतीम होकर भी तुमने बड़ा शिकार कर लिया। अबीहा के लब भेंच गए, मगर वो बोली कुछ नहीं। जुरेज अंदर आया तो माहौल में तनाव महसूस हुआ। खाला, ये बातें आपको जेब नहीं देती। मैं तो हकीकत कह रही हूं बेटा। कुछ हकीकतें जबान पर अच्छी नहीं लगती। खाला सगरा ने होंठ भेंचे और वहां से उठ गई। अबीहा ने हैरत से जुरेज को देखा। आपने मेरे लिए बात की? मैंने सच के लिए बात की। फिर भी शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, ये मेरा फर्ज है। मगर अभी यह जान गई थी, इस सख्त खौल के अंदर कोई दिल जरूर धड़कता है। रात के वक्त जब वो नमाज पढ़ रही थी, जुरेज खामोशी से दरवाजे पर खड़ा रहा। चेहरे पर सुकून की झलक देखकर वो जैसे पल भर को भूल गया कि वो खुद कौन है। वो औरत जो कभी उसके ख्यालों में भी नहीं थी, आज उसकी दुआ में थी। नमाज खत्म हुई। अबीहा ने पलट कर देखा। वो हैरत से रुक गई। आप यहां? बस यूं ही। आपके अंदर बहुत कुछ है जो आप छुपाते हैं जुरेज। शायद, वो हल्का सा बोला, लेकिन हर राज जाहिर करने के लिए वक्त चाहिए। अबीहा ने धीरे से कहा, तो फिर मैं वक्त दूंगी। वो जुमला उसके दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गया। वो लम्हा शायद छोटा था, मगर वहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया, जहां खामोश नफरत खामोश मोहब्बत में बदलने लगी। सुबह की रोशनी हवेली के सहन में फैल रही थी। अबीहा हाथों में चाय की ट्रे लिए बरामदे की तरफ आई। जुरेज खानजादा हमेशा की तरह अखबार में गुम था, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। उसकी निगाहें बार बार अबीहा की तरफ उठ रही थी। उसने बगैर कुछ कहे चाय सामने रखी। शुक्रिया। वो लम्हा भर को ठुटक गई। ये पहला मौका था जब उसने इसके मुंह से शाइस्तगी सुनी थी। आपने कुछ कहा? हाँ, शुक्रिया। आपसे ये लफ्ज सुनकर अजीब सा लगा। अजीब क्यों? क्योंकि आपके चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता है। शुक्रिया जैसे लफ्ज वहां जचते नहीं। जुरेज के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। तुम्हारी जबान तेज हो गई है। शायद आपके सकूत से मुतासिर हुई हूं। सकूत कभी असर नहीं डालता, सिर्फ बर्दाश्त सिखाता है। अबीहा ने चाय की प्याली थामी और बोली, बर्दाश्त के पीछे भी एक दर्द छुपा होता है जो आप दिखाते नहीं। वो चुप रहा। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी खामोशी को इतनी गहराई से महसूस किया था। दिन गुजरते गए।
حویلی میں ابیہا کی موجودگی جیسے رنگ بھرنے لگی تھی۔ وہ صحن میں پودے لگاتی، نوکروں سے مسکرا کر بات کرتی اور ہر کام میں اپنا لمس ڈال دیتی۔ گھر کی فضا جو پہلے خاموش تھی اب زندگی سے بھرنے لگی تھی۔ ایک دن زریز گھر آیا تو دیکھا کہ ابیہا بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھی۔ اس کی آواز میں نرمی اور سکون تھا۔ وہ دروازے پر رکا رہا، دل میں عجیب سا احساس جاگا۔ یہی عورت تھی جسے اس نے دنیا کی نظروں سے بچا کر اپنے نام کیا تھا، اور آج وہی عورت اس کی خاموش زندگی کو معنی دے رہی تھی۔ بچوں کے جانے کے بعد وہ آہستہ سے بولا، تمہیں پڑھانا پسند ہے؟ ہاں، کیونکہ علم بانٹنے سے دل بھرتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور تمہارا دل، وہ بھرا ہے یا خالی؟ اب خالی نہیں رہا، شاید آپ کی خاموشی نے کچھ بھر دیا ہے اس میں۔ زریز چونک گیا۔ یہ الفاظ سیدھے دل کے اندر اتر گئے۔ وہ پہلی بار اس کی آنکھوں سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ اسی دوران خاندان کے چند افراد کا رویہ بدلنے لگا۔ خالہ صغرا کی باتیں پھر تیز ہو گئیں۔ یہ لڑکی اب زریز کے دماغ پر چھا گئی ہے، نہ جانے کیا جادو کر دیا ہے اس نے۔ ان کی بیٹی نازنین نے طنزیہ لہجے میں کہا، خالہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، جب عورت نرم لہجے میں بات کرے تو پہاڑ بھی پگھل جاتے ہیں۔ ان کی باتیں ابیہا کے کانوں تک پہنچی، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی جواب دینے سے بات بگڑ جائے گی، مگر زریز سب جانتا تھا۔ شام کو وہ لائبریری میں بیٹھا تھا جب نازنین چائے لے کر آئی۔ چائے لیجیے بھائی، میں نے خود بنائی ہے۔ رکھ دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ بس ایک بات پوچھنی تھی۔ وہ کرسی کے قریب آئی۔ کیا؟ یہ جو ابیہا آپ کے دل کے اتنے قریب ہے، کیا واقعی محبت ہے یا ترس؟ زریز نے تیز نظروں سے دیکھا۔ تمہاری بات تمہارے ظرف کو ظاہر کرتی ہے نازنین۔ تو پھر بتائیں نا، یہ رشتہ کیا ہے؟ وہ میرا فیصلہ ہے جس پر کسی کو وضاحت نہیں دینی۔ نازنین خاموشی سے چلی گئی، مگر اس کے جانے کے بعد زریز کی مٹھیاں بند تھیں۔ دل میں وہ اعتراف جو زبان پر نہیں آیا تھا اب بغاوت کرنے لگا تھا۔ رات کے وقت ابیہا کچن میں کھڑی سالن چکھ رہی تھی۔ زریز خاموشی سے آیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نمک زیادہ ہے۔ وہ چونک کر پلٹی۔ آپ یہاں؟ ہاں، بھوک لگ رہی تھی، میں ابھی دسترخوان لگاتی ہوں۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی حرکات میں ایک نرمی تھی، جیسے ہر کام دل سے کرتی ہو۔ تمہیں حویلی میں اب گھٹن نہیں لگتی؟ پہلے لگتی تھی، اب نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہاں آپ کی خاموشی میں بھی عادت ہو گئی ہے۔ زریز نے نظریں جھکائیں۔ میں کبھی بدل نہیں سکوں گا ابیہا۔ میں نے آپ سے بدلنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے مانگا ہے۔ یہ جملہ زریز کے دل پر نقوش چھوڑ گیا۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ کچھ جذبے الفاظ میں قید نہیں کیے جا سکتے۔ چند دن بعد ایک واقعے نے سب بدل دیا۔ خالہ صغرا نے اپنے بھائی کے بیٹے فراز کو حویلی بلایا۔ فراز جوان اور باتونی تھا، ابیہا کے ساتھ باتوں میں ہنسی مذاق کرنے لگا۔ زریز کے چہرے پر سختی چھا گئی۔ شام کو جب وہ ابیہا کے سامنے آیا تو لہجہ ٹھنڈا مگر تیز تھا۔ فراز سے اتنی قریبی باتیں کیوں کر رہی تھی؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تمہیں اندازہ نہیں، تمہارا ہر لفظ دوسروں کو موقع دیتا ہے تم پر انگلی اٹھانے کا۔ تو آپ ہی بتا دیجئے، مجھے کب تک ہر نظر سے ڈر کر جینا ہے؟ جب تک تم میرا نام رکھتی ہو تب تک تم پر انگلی نہیں اٹھنے دوں گا۔ لیکن آپ میری حفاظت کرتے ہیں یا قید؟ اس کے لہجے میں آنسو لرز گئے۔ میں تمہیں قید نہیں کر رہا ابیہا، میں بس تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ زریز کے الفاظ نے ماحول بدل دیا۔ ابیہا نے پلٹ کر دیکھا۔ پہلی بار وہ شخص جس نے کبھی اپنے دل کی بات نہیں کی تھی آج اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا تھا۔ کھونا؟ مگر آپ نے تو کبھی پایا ہی نہیں۔ پایا ہے، وہ دھیرے سے بولا، بس ماننے سے ڈرتا ہوں۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی پھیل گئی۔ ابیہا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ تو پھر ایک بار کہہ دیجئے زریز خانزادہ کہ آپ کے دل میں میرے لیے۔ زریز کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب جواب موجود تھا
जो अल्फाज कहने से कासिर थे। वो आहिस्ता से बोला, वक्त आने दो, सब कह दूंगा। अगले दिन वो सुबह सवेरे हवेली से निकल गया, किसी को कुछ बताए बगैर। अबिहा ने इंतजार किया। शाम ढली, रात आई, वो नहीं आया। दिल में अजीब सा खला था। जब वो वापस लौटा तो आंखों के गिर्द थकन के साए थे। कहाँ गए थे? बस खुद से मिलने। और मिल पाए? हाँ, और जवाब भी मिल गया। अबिहा ने धीरे से पूछा, कौन सा जवाब? कि कुछ एहसासात कैद नहीं रह सकते। वो उसके करीब आया, नरमी से उसके चेहरे पर नजर डाली। अबिहा, मैं शायद मोहब्बत के लफ्ज़ से डरता रहा, मगर तुम्हारे बगैर रहने के ख्याल से ज्यादा कुछ नहीं डराता मुझे। अबिहा की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। फिर देर क्यों की इतनी? ईगो ने रोक रखा था, मगर तुम्हारी खामोशी ने आखिरकार उसे तोड़ दिया। उस लम्हे वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, दो खामोश वजूद, मगर दिलों में तूफान बरपा। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर हर जज्बा कह दिया गया। रात के दूसरे पहर हवेली में खामोशी गहरी थी। दालान में जलता दिया हल्की हवा से लरस रहा था। अबिहा खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ख्वाब का अक्स हो। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। जुरेज खानजादा कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वो सुकून था जो पहले कभी नहीं देखा गया। चंद लम्हों तक वो खामोशी से उसे देखता रहा। सोई नहीं तुम? नींद नहीं आ रही? क्यों? दिल में बहुत कुछ है जो समझ नहीं आता। वो करीब आया। कह दो, शायद समझने में मदद मिल जाए। अगर मैं कह दूं तो शायद सब बदल जाएगा। बदलने से तो ही जिंदगी जीती है अबिहा। अबिहा की सांसें लरजने लगी। आप बदल गए हैं जुरेज। अब वो सख्त लहजा नहीं, वो खौफ नहीं। क्या हुआ है आपको? तुम हो ना? वो धीरे से बोला। मैं? हाँ, तुमने मेरी खामोशी को बोलना सिखा दिया है। कमरे में चांदनी और सांसों की आवाज थी। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक के लबों पर सवाल, दूसरे के दिल में जवाब। जुरेज ने आहिस्ता से कहा, मैं शायद पहले दिन से तुम्हें चाहता था, मगर मेरी अना, मेरा गरूर, सब कुछ मेरे जज्बे के रास्ते में दीवार बन गया। अबिहा की आंखों में नमी तैरने लगी। तो अब वो दीवार गिरने लगी। हाँ, तुम्हारी खामोशी ने उसे तोड़ दिया। वो लम्हा उनके बीच फासला खत्म होता जा रहा था। जुरेज ने हाथ बढ़ाया। मुझे तुम्हारा हाथ थामने का हक अब मिला है, मगर दिल चाहता है तुम खुद अपनी मर्जी से ये हक दो। अबिहा ने धीरे से अपनी हथेली उसके हाथ में रख दी। ये हक आपको कब का दे चुकी हूं, बस एतराफ की देर थी। अगले दिन सुबह हवेली में जिंदगी जैसे बदल गई थी। जुरेज पहली बार सबके सामने मुस्कुराता दिखाई दिया। नौकर हैरान, औरतें चुप और बच्चे खुश। खाला सोगरा अलबत्ता अंदर ही अंदर सुलग रही थी। देखा, मैं ना कहती थी ये लड़की आखिरकार जुरेज पर जादू कर गई। उनकी बेटी नाजनीन बोली, खाला अगर आप चाहें तो मैं भी एक खेल खेल सकती हूँ। खेल? हाँ, मोहब्बत को तोड़ने के लिए दिल नहीं, चाल चाहिए। खाला ने मायनी खेज अंदाज में सर हिलाया। यूं उनके दिल में एक नई साजिश जन्म लेने लगी। शाम का वक्त था। अबिहा बाग में फूलों को पानी दे रही थी। जुरेज आहिस्ता कदमों से आया। ये फूल तुम जैसे हैं, हर दिन खिलते जा रहे हैं। फूलों को धूप चाहिए होती है और कभी कभी साया भी। मैं वादा करता हूं अब तुम्हें दोनों मिलेंगे। इसी दौरान नाज़नीन हाथ में लिफाफा लिए आई। भाई, डाक आई है। मेरे लिए? जी, लाहौर से। जुरेज ने लिफाफा खोला। अंदर कुछ तस्वीर थी। एक तस्वीर में फराज और अबिहा किसी तकरीब में साथ दिखाए गए थे। तस्वीर वाज़ेह थी, मगर हकीकत मस्ख शुदा। जुरेज के चेहरे का रंग बदल गया। ये क्या है? नाज़नीन ने मसनूई हैरत से कहा। भाई, मैं तो खुद हैरान हूं। शायद वो वक्त जब आप शहर से बाहर थे। अबिहा आगे बढ़ी। ये झूठ है, मैं कभी किसी तकरीब में नहीं गई। तस्वीर खुद बोल रही है अबिहा।
नाज़नीन ने जहर घोला। कभी कभी चेहरे सच्चे और तस्वीरें झूठ बोलती हैं, मगर कभी कभी उल्टा भी होता है। जुरेज खामोश हो गया। अबीहा के लब कँपाए। आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे? मैं देखना चाहता हूं कि सच क्या है। सच वही है जो मेरी आंखों में है, मगर आप देख नहीं रहे। वो दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। रात को हवेली में अजीब सन्नाटा था। अबीहा अपने कमरे में बंद रो रही थी और दरवाजे के उस पार जुरेज खड़ा था, मगर अंदर आने की हिम्मत नहीं थी। वो दरवाजे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, मुझे यकीन है तुम झूठ नहीं बोल सकती। अंदर से कोई जवाब ना आया। वो पलटने लगा तो दरवाज़ा खुल गया। अबीहा की आंखें रो रो कर लाल थीं। आपने यकीन तो किया, मगर देर से। मैं इंसान हूं। शक की लकीर दिल में आ गई थी, मगर अब साफ हो गई है। और अगर वो शक दोबारा आ गया तो फिर मैं खुद को सजा दूंगा, तुम्हें नहीं। जुरेज ने तस्वीर उसके सामने ही फाड़ दी। मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो हकीकत नहीं, हकीकत तुम हो, और तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी खाली है अबीहा। अबीहा धीरे से बोली, तो फिर कह दीजिए जो इतने दिनों से दिल में है। कह दिया है, मगर अब लफ्जों में भी सुन लो। मैं तुम्हें चाहता हूं अबीहा, हद से ज्यादा, अपनी सांसों से भी ज्यादा। वो एक कदम आगे बढ़ा, उसके आंसू अपने हाथों से साफ किए। मुझे माफ कर दो, तुम पर शक करना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी, और आपकी ये कमजोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जुरेज के चेहरे पर पहली बार सुकून का साया छा गया। वो झुककर उसके माथे पर हल्का सा बोसा देने लगा। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। अगली सुबह खाला सुगरा के कमरे से शोर उठा। नाज़नीन सहम सी गई। जुरेज के हाथ में वही तस्वीरों वाला लिफाफा था, मगर उसके साथ नाज़नीन की अपनी तहरीर भी, जिसमें उसने फराज के साथ मिलकर साजिश का एतराफ़ किया था। ये तुम्हारा खेल था? खाला ने कपकपाते लहजे में कहा। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। बस बहुत कर लिया खाला, अब सुकून से बैठ जाएं। जो इज्जत मैंने आपको हमेशा दी वो आज से वापस ले रहा हूं। और वो तेज कदमों से वहां से निकल गया। अबीहा बाग में खड़ी थी। उसके हाथों में वही फूल जो कल मुस्कुराते थे आज कांप रहे थे। जुरेज उसके सामने आया। तुम्हारा भरोसा जीतने में मुझे बरसों लगे, और एक लम्हे में मैंने सब तोड़ दिया। मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आया, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रखने आया हूं। अबीहा के होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट आई। मोहब्बत में माफी नहीं मांगी जाती जुरेज, वो खुद ब खुद दिल में उतर जाती है। वो आगे बढ़ी। आप बदल गए हैं, मगर जो बदलाव आप में आया वो मोहब्बत का कमाल है, मेरा नहीं। नहीं अबीहा, वो मध्यम लहजे में बोला, ये तुम ही हो जिन्होंने जुरेज खानजादा जैसे पत्थर दिल को इंसान बना दिया। चांदनी एक बार फिर उनके दरमियान उतर आई। हवा में खामोशी नहीं, इत्मीनान था। पहली बार इस हवेली की दीवारों ने मोहब्बत का गवाह बनकर सांस ली। सुबह की नरम धूप हवेली के सहन में फैल रही थी। अबीहा ने चाय की प्याली जुरेज के सामने रखी। आज चाय आपके अंदाज में बनाई है, कम चीनी, ज्यादा सुकून के साथ। जुरेज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले मैं चीनी कम मांगता था, सुकून नहीं। अब वो खुद मिलने लगा है। अबीहा ने नजरें झुकाई। कभी कभी सुकून भी सवाल बन जाता है जुरेज। सवाल? हाँ, जब दिल डरता है कि खुशी कहीं छिन ना जाए। जुरेज ने उसके हाथ पर हाथ रखा। खुशी छीनने वाले अब जिंदा नहीं अबीहा, अब सब ठीक है। लेकिन तकदीर हमेशा सुकून से हसद करती है। उसी लम्हे नौकर दौड़ता हुआ आया। साहब, एक आदमी बाहर आया है लाहौर से, कहता है कि वो अबीहा बीबी के वालिद के पुराने कारोबार का शरीक था। जुरेज ने चौंक कर पूछा, नाम क्या बताया उसने? फराज जनाब। कमरे की फिजा जैसे थम गई। अब वही नाम जो कभी इल्जाम बनकर आया था हकीकत बनकर दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजे पर फराज निहायत संजीदा अंदाज में खड़ा था। चेहरे पर वक्त की लकीरें
मगर निकाह में नरमी थी। अस्सलाम वालेकुम खानज़ादा साहब, मैं अबिहा के वालिद के साथ कारोबार में था। कुछ कागजात हैं जो उनकी बेटी के नाम होने चाहिए। जुरेज ने उसे बैठने का इशारा किया। आपके आने का मकसद अगर यही है तो बराहे करम कल दफ्तर आ जाइएगा। फराज ने नजरें झुकाई। जरूर, मगर पहले मैं अबिहा से 2 लफ्ज कहना चाहता हूं। उसी वक्त अबिहा भी दरवाजे पर आ गई। फराज भाई, मैं तुम्हें बहन समझता था, मगर तुम्हारे वालिद के बाद किसी ने तुम्हारा हक मांगा नहीं, इसीलिए मैं खुद देने आया हूं। ये तुम्हारे वालिद की अमानत है। उसने कागजात मेज पर रखे और खामोशी से चला गया। जुरेज ने गहरी सांस ली। मैं जल्दबाजी में जिस पर शक कर गया वो शख्स शायद हम दोनों से ज्यादा साफ निकला। अबिहा ने नरमी से कहा, मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब इंसान अपनी गलती तस्लीम करे। तो फिर क्या मैं मुकम्मल हो गया? हाँ, अब आप पूरे लगते हैं जुरेज खानजादा। कुछ दिनों बाद हवेली में रौनक थी। अबिहा ने स्कूल खोलने का फैसला किया था, यतीम और गरीब बच्चों के लिए। जुरेज ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया, लेकिन खाला सुगरा के दिल में जलन अब भी बाकी थी। वो अब भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि जिसे वो यतीम लड़की कहती थी वो अब खानजादा खानदान की बहू कहलाए। एक शाम वो नाजनीन के साथ बैठकर बोली, एक औरत की जीत दूसरी की हार पर बनती है नाजनीन, और मैं हारी नहीं हूं अभी। तो अब क्या करेंगे अम्मी? अब इस कहानी में एक मोड़ लाऊंगी, एक ऐसा मोड़ जो मोहब्बत का इम्तिहान लेगा। अगले दिन शहर के अखबार में एक खबर शाया हुई। खानजादा स्टेट की नई जमीन के मुकदमे में फराज का दावा। मलकियत का झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। हवेली में हलचल मच गई। जुरेज के चेहरे पर वही सख्ती वापस आ गई। यही वो शख्स है जिसे तुमने हमेशा मासूम समझा था अबिहा? नहीं जुरेज, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं अदालत में बात करूंगा, मगर अगर वो झूठा निकला तो फिर मैं किसी पर रहम नहीं करूंगा। अबिहा ने धीरे से कहा, मोहब्बत रहम से नहीं भरोसे से जिंदा रहती है। अगर आपने भरोसा तोड़ दिया तो फिर मोहब्बत भी मर जाएगी। जुरेज खामोश रहा। कमरे में वही फासला फिर से लौट आया। चंद दिन गुजरे, फराज अदालत में पेश हुआ और सबूत दिखाए, जिनमें वाज़ेह था कि जमीन दरअसल अबिहा के नाम की जायदाद थी। खाला सुगरा के मंसूबे का पर्दा उसी रोज फाश हुआ जब उनके अपने जाली दस्तखत कागजात पर पाए गए। जुरेज ने अदालत के बाहर अबिहा का हाथ थाम लिया। मैं हर बार तुम पर शक करके हारता हूं और तुम हर बार मुझे माफ करके जीत जाती हो। अबिहा के लबों पर मुस्कुराहट थी। मोहब्बत जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होती है। उस शाम हवेली की फिजा में सुकून फैल गया। अबिहा स्कूल के बच्चों में मसरूफ थी। जुरेज उसे दूर से देख रहा था। छोटे बच्चों की हंसने की आवाजें, उसके चेहरे पर धूप की चमक और आंखों में वही नरमी जिसने कभी उसका गुरूर तोड़ दिया था। वो धीरे से पीछे से आया और बोला, ये जो सुकून तुमने इस घर में भरा है वो मेरे अंदर की जंग खत्म कर गया है अबिहा। अबिहा ने पलट कर देखा तो अब आप वो जुरेज नहीं रहे। नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारा जुरेज हूं। दोनों के दरमियान हवा में खुशबू तैरने लगी। सूरज डूब रहा था, मगर मोहब्बत का नया सूरज तुलू हो चुका था। उसी रात अबिहा ने डायरी खोली। सफहात पर उसने लिखा, मोहब्बत कभी एक दिन में नहीं जीती, वो वक्त के हर मोड़ पर आजमाई जाती है, मगर जब एक सख्त दिल पिघलता है तो वो सिर्फ किसी औरत की दुआ से नहीं बल्कि उसके सब्र से पिघलता है। और आज जुरेज खानजादा पिघल चुका है। हवेली में एक नई जिंदगी सांस ले रही थी। दीवारों पर अब सुकून की रोशनी थी। सहन में बच्चों के कहकहे गूंजते थे और अबिहा के चेहरे पर वो इत्मीनान था जो सिर्फ मोहब्बत के मुकम्मल होने पर आता है। जुरेज खानजादा जो कभी अपने एहसासात से इनकार करता था, अब हर वक्त अबिहा के साथ नाश्ता करता, हर शाम उसके हाथ की चाय पीता और रातों को उसके लबों की खामोशी सुनने लगता। आज स्कूल में कितने बच्चे आए थे? 20 नए दाखिल हुए हैं, अबिहा ने मुस्कुराते हुए बताया। सब गरीब लोगों के बच्चे हैं जिन्हें अब उम्मीद मिली है।
जुरेज ने नरमी से कहा, तुम्हें नहीं लगता ये सब तुम्हारे वालिद की दुआ का सिला है? अबिहा की आंखें नम हो गई। शायद हाँ, लेकिन ये सुकून आपकी वजह से भी है जुरेज। इसी दौरान दरवाजे पर गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने इत्तला दी, साहब कोई मोहतरमा आपसे मिलने आई हैं, नाम आमना बता रही हैं। जुरेज चौंक गया। आमना? हाँ साहब, लाहौर से आई हैं, कह रही थी आपके वालिद की पुरानी वाकिफ हैं। आमना कमरे में दाखिल हुई, खूबसूरत, बावकार, मगर आंखों में थकन। अस्सलामुअलैकुम जुरेज, बरसों बाद तुम्हें देख रही हूं। आप? आमना आंटी? हाँ बेटा, तुम्हारे वालिद के दोस्त की बीवी। अबिहा ने अदब से सलाम किया। आमना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो तुम वो हो जिसने इस पत्थर दिल जुरेज को इंसान बना दिया? अबिहा हल्का सा शर्मा गई। आमना ने मेज पर एक फाइल रखी। मैं तुम्हारे वालिद की एक अमानत वापस देने आई हूं। उनके कारोबार का कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम था, मगर हालात ऐसे बने कि तुम्हारे वालिद ने कागजात अपने दोस्त के पास रखवा दिए थे। अब वक्त आ गया है कि वो तुम्हें वापस मिल जाएं। जुरेज ने हैरत से फाइल खोली। ये तो करोड़ों की जमीन है। आमना ने धीरे से कहा, हाँ, और तुम्हारे वालिद चाहते थे तुम इससे लोगों की भलाई करो। अबिहा की आंखों में चमक आ गई। हम इससे स्कूल का दूसरा कैंपस बना सकते हैं जुरेज। जी हाँ, और उसका नाम तुम्हारे वालिद के नाम पर रखेंगे। कुछ दिनों तक आमना हवेली में मेहमान रही। वो अबिहा के साथ बहुत वक्त गुजारने लगी थी और रफ्ता रफ्ता जुरेज के मिजाज को भी समझने लगी। एक दिन वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है जुरेज, तुम्हारे वालिद तुम्हारी शादी मेरी बेटी से करना चाहते थे। जुरेज चौंक गया। क्या? मगर आपकी बेटी कहाँ है? आमना की आंखें भर आई। वो अब नहीं रही, हादसे में चली गई। तब से मैं अकेली हूं। अबिहा ने नरमी से उसका हाथ थामा। अल्लाह आपको सब्र दे, आप यहां हमारे साथ रहें, बिल्कुल अकेली मत रहें। आमना के चेहरे पर सुकून उतर आया। शायद यही दुआ मेरी बेटी ने मांगी थी, किसी के घर में मां बनकर रहने की। एक दिन स्कूल में अचानक आग लग गई। बच्चे चीखने लगे, लोग भाग दौड़ में लग गए। अबिहा अंदर थी और जुरेज दीवाना वार दौड़ता वहां पहुंचा। अबिहा, वो चीखा। मैं यहां हूं, वो आवाज आई। धुआं हर तरफ फैल चुका था। जुरेज ने दरवाजा तोड़ा और उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। बाहर लोग हैरान थे। जुरेज खानजादा, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो एहसास से खाली है, आज अपनी जान खतरे में डालकर किसी और की जान बचा रहा था। उसने अबिहा को बाहर लाकर जमीन पर बिठाया। खुद खांसते हुए बोला, मैंने कहा था ना, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, हत्ता कि मौत भी नहीं। अबिहा रो पड़ी। आपको कुछ हो जाता तो शायद मेरी जिंदगी अधूरी नहीं, मुकम्मल हो जाती, क्योंकि तुम मेरे साथ थी। कुछ दिन बाद सब कुछ संभल गया। आमना ने आहिस्ता से जुरेज से कहा, बेटा, तुमने जिंदगी का वो रूप दिखाया जो तुम्हारे वालिद दिखाना चाहते थे। तुम उनके ख्वाब को हकीकत बना रहे हो। जुरेज ने जवाब दिया, अगर अबिहा ना होती तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। अबिहा ने मुस्कुराकर कहा, और अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी खुद पर यकीन ना कर पाती। आमना ने उन दोनों को देखा। तुम दोनों एक दूसरे की दुआ हो, लेकिन याद रखो, दुआ को संभाल कर रखना भी फर्ज होता है। रात का वक्त था। अबिहा छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। जुरेज उसके पास आया। क्या सोच रही हो? सोच रही हूं अगर जिंदगी में कोई दुख ना आता तो शायद ये खुशी इतनी कीमती ना लगती। दुख ही तो सुख का वजन बढ़ाता है अबिहा। हम दोनों ने जो खोया वो दरअसल हमें खुद मिला, और जो अब मिला है वो कभी नहीं खोऊंगा। जुरेज ने उसका हाथ थामा। मैंने कभी किसी से वादे नहीं किए, लेकिन आज एक वादा कर रहा हूं, तुम्हारी हर सांस मेरी हिफाजत में रहेगी। अबिहा के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर शायद यही मोहब्बत का नया आगाज है। जुरेज ने उसके माथे पर बोसा दिया। नहीं, ये इख्तिताम है उस कहानी का जिसने दो तन्हा दिलों को एक बना दिया। अब हम सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिंदगी हैं। चांदनी उन पर बरस रही थी और हवा में दुआ की सी खुशबू फैली थी।
जिंदगी ने पहली बार उन दोनों को मुकम्मल कर दिया था। हवेली की फिजा पुरसकून थी। स्कूल दोबारा खुल चुका था। बच्चे हंसी खुशी खेल रहे थे और जुरेज के चेहरे पर पहली बार मुस्तकिल मुस्कुराहट नजर आ रही थी। अबिहा ने चाय की ट्रे मेज पर रखी। अब तो आप वाकई बदल गए हैं जुरेज। बदलना जरूरी था अबिहा, वरना मैं सारी जिंदगी अपनी अना में कैद रहता। और अब तुम्हारी मोहब्बत में आजाद हूं। अबिहा की आंखों में नमी उतर आई। काश जिंदगी हमेशा यूं ही ठहरी रहे। जुरेज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठहरी हुई जिंदगी बोर होती है। मोहब्बत को चलने के लिए आजमाइशें चाहिए होती हैं। ये अल्फाज जैसे आने वाले तूफान का पेश खैमा थे। शाम के वक्त आमना सहन में बैठी पुराने कागजात देख रही थी। कभी कभी वो अपनी माजी में खो जाती थी और कभी खामोशी से आंसू पोंछ लेती। उसी लम्हे अबिहा आई। आंटी, कुछ परेशान लग रही हैं। परेशानी नहीं, बस वक्त के कुछ बिखरे वर्क समेट रही हूं। अबिहा ने फाइल हाथ में ली। ये तो पुराने मुआहदों के कागज लग रहे हैं। आमना के चेहरे पर एक लम्हे को अजीब सी झिझक आई। हाँ, तुम्हारे ससुर खानजादा साहब के कुछ जाती कागज थे। मैंने सोचा जुरेज को दे दूं, मगर फिर रुक गई। क्यों? क्योंकि इनमें एक राज है, एक ऐसा राज जो तुम्हारे रिश्ते की बुनियाद हिला सकता है। अबिहा का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? आमना ने नजरें झुकाई। तुम्हारे वालिद और जुरेज के वालिद कारोबारी शराकतदार नहीं, दरअसल सगे भाई थे। अबिहा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। क्या? हाँ, तुम्हारे वालिद छोटे भाई थे। एक गलत फहमी के बायस दोनों में जुदाई हो गई। जुरेज के वालिद ने सब कुछ अपने नाम कर लिया और तुम्हारे वालिद खामोशी से लाहौर चले गए। अबिहा के लब कपकपाए। तो इसका मतलब मैं और जुरेज, खूनी रिश्ते के लिहाज से तुम दोनों का ताल्लुक भतीजी और चचा के बेटे जैसा है, मगर कानूनी तौर पर नहीं, क्योंकि वो रिश्ता कभी कागजों पर साबित नहीं हुआ। अबिहा की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये झूठ है। काश ऐसा ही होता बेटी। रात गहरी हो चुकी थी। जुरेज वापस आया तो अबिहा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथों में वही कागजात थे। ये क्या है अबिहा? सच। क्या मतलब? आपके वालिद और मेरे वालिद भाई थे। हम दोनों एक ही खून के रिश्ते से जुड़े हैं जुरेज। जुरेज के चेहरे पर एक लम्हे को रंग उड़ गया। ये झूठ है। काश होता, मगर ये दस्तखत, ये सर्टिफिकेट सब कुछ बता रहे हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं, एक पुराने खानदान का भी है। जुरेज ने फाइल हाथ से छीनकर जमीन पर फेंक दी। मैं मानने से इनकार करता हूं। मैंने तुम्हें मोहब्बत से चुना है, खून के रिश्ते से नहीं। अबिहा रो पड़ी। लेकिन दुनिया नहीं मानेगी जुरेज। लोग वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, मोहब्बत को गुनाह बना देंगे। जुरेज ने सख्त लहजे में कहा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये रिश्ता मेरा फैसला है, दुनिया का नहीं। मगर दुनिया कहाँ बाज आती है। अगली सुबह खाला सुगरा के हाथ वही फाइल पहुंच गई। पूरे खानदान में चेमोगोइयां शुरू हो गई। देखा, हम तो पहले कहते थे ये रिश्ता जायज नहीं। जुरेज ने अपने ही खानदान की लड़की से शादी कर ली। हवेली का सुकून पल भर में बर्बाद हो गया। जुरेज खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में बिजलियां कौंध रही थी। जिसने ये राज फैलाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आमना सामने आई। मैंने फैलाया। क्या? आप? हाँ, क्योंकि सच छुपाने से जख्म नहीं भरते। तुम्हें हकीकत जाननी चाहिए थी। जुरेज ने तंजिया हंसी हंसी। वाकई? या तुम चाहती थी कि हमारा सुकून टूट जाए? आमना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें बेटा समझा था, इसीलिए तुम्हें धोखे से बचाना चाहा। अबिहा ने रोते हुए कहा, आंटी, आपने जो किया वो शायद ठीक था, मगर इस वक्त ने हमें तोड़ दिया। कुछ दिन गुजर गए। अबिहा ने खुद को सबसे अलग कर लिया। वो स्कूल भी नहीं जाती थी, कमरे में बंद, सिर्फ डायरी के साथ जिंदा थी। एक शाम जुरेज अंदर आया। क्या हम इतने कमजोर हो गए अबिहा? क्या एक राज हमारी मोहब्बत को खत्म कर सकता है? अबिहा ने आंसू साफ करते कहा, मोहब्बत खत्म नहीं हुई, मगर टूट गई है। और जो चीज टूट जाए वो कभी वैसे नहीं रहती।
नहीं, मैं इसे जोड़ूंगा, और अगर दुनिया ने नहीं माना तो फिर मैं दुनिया छोड़ दूंगा। ये जिद नहीं, गुनाह है जुरेज। हमें इस रिश्ते को इज्जत के साथ ख़त्म करना होगा, वरना मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। जुरेज के लब कपकपाए। तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, क्योंकि मोहब्बत अगर पाक हो तो जुदाई भी इबादत बन जाती है। जुरेज ने आंखें बंद की। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, अगर यही तुम्हारी रजा है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना मैं तुमसे जुदा हो सकता हूं, तुम्हें भुला नहीं सकता। वो रात अबिहा के लिए कयामत थी। उसने डायरी खोली और लिखा, मोहब्बत अगर सच हो तो फासला भी कम लगता है, मगर कभी कभी एक सच वो कर देता है जो 1000 झूठ नहीं कर पाते। वो 2 दिलों को जुदा कर देता है। अगली सुबह जुरेज हवेली छोड़कर जा चुका था। हवेली की दीवारों पर एक बार फिर खामोशी लौट आई और अबिहा की आंखों में सिर्फ वो चेहरा रह गया जिसे उसने मोहब्बत से नहीं तकदीर से खो दिया। रात की चांदनी छत की सिलों पर फैल रही थी। अबिहा की आंखों में नींद नाम की चीज नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर नीम दराज बैठी डायरी की आखिरी सफ़े पर लिख रही थी, शायद यही मेरा मुकद्दर था कि वो चला जाए, मगर मेरा दिल जानता है मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ रूप बदल लेती है। लफ्ज़ ख़त्म हुए तो आंसू गिरने लगे। वो डायरी बंद करके सीने से लगा ली। वैसे वही आखिरी निशानी हो उसकी और जुरेज के दरमियान। महीने बीत गए। अबिहा ने अपने आप को वक्त के हवाले कर दिया। स्कूल, बच्चे, दरसो तदरीस, यही अब उसकी ज़िंदगी बन चुके थे, मगर दिल के किसी कोने में एक चेहरा अब भी जिंदा था, जो खफा होकर भी दुआ बनकर साथ रहता। एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही थी जब बाजार के बीच एक शोर मचा। किसी की गाड़ी का हादसा हो गया। लोग दौड़ते जा रहे थे। दिल न जाने क्यों बेकाबू होकर धड़कने लगा। कदम खुद ब खुद उस सिमत बढ़ गए। जब करीब पहुंची तो जमीन जैसे खिसक गई। वो वही चेहरा था, गर्द, खून और थकन में डूबा हुआ, जुरेज खानजादा। या अल्लाह, वो लरसती आवाज में बोली, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। अस्पताल के सफ़ेद कमरों में वक्त अपनी रफ्तार खो चुका था। डॉक्टर ने कहा, अभी खतरे से बाहर हैं, मगर जिस्मानी चोटों के साथ दिल पर दबाव बहुत ज़्यादा है। उन्हें आराम और सुकून चाहिए, वरना दिल दोबारा साथ नहीं देगा। अबिहा दरवाजे के करीब बैठी थी। उसके हाथों में तस्बीह थी और लबों पर दुआ। या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में जुदाई लिखी थी तो अब कम से कम उसे सलामती दे दे। कुछ दिन बाद जुरेज को होश आया। आंख खुली तो सामने अबिहा थी, चेहरे पर नकाहत मगर आंखों में सुकून। तुम? उसने बमुश्किल कहा। हाँ। तुम्हें लगा मैं भूल गई हूं? तुम भूलने वाली नहीं लगती, मगर मैंने तुम्हें दुख बहुत दिए हैं। मोहब्बत कभी दुख से ख़त्म नहीं होती जुरेज, वो तो तब ख़त्म होती है जब यकीन मर जाए, और मेरा यकीन अब भी जिंदा है। जुरेज की आंखों में नमी आई। काश मैं तुम्हें पहले समझ पाता। नहीं, तुमने वक्त पर लौटना था, वरना ये मुलाकात अधूरी रह जाती। चंद हफ्तों में वो सेहतयाब होने लगा, मगर अब उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून था। वो गरूर, वो अना जो कभी उसकी पहचान थी, मट्टी में दफन हो चुकी थी। एक शाम वो व्हीलचेयर पर बरामदे में आया। अबिहा चाय लेकर आई। तुम आज बहुत खामोश हो। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ी माफ़ी होती है अबिहा। मैं अब शोर नहीं मचाऊंगा, बस इतना चाहता हूं तुम मेरी जिंदगी की आखिरी दुआ बन जाओ। अबिहा के लब कपकपाए। आखिरी? हाँ, क्योंकि अब मैं ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहूंगा। डॉक्टर कह गए हैं दिल का बोझ ज्यादा है, मगर मैं चाहता हूं तुम्हें अपनी सांसों का हिस्सा बनाकर जाऊं। उसी रात मौलवी साहब को बुलाया गया। कमरों में चिरागों की रोशनी थी। अबिहा के हाथ लरज रहे थे, मगर दिल में सुकून था। निकाह के वक्त जब मौलवी ने कहा, कबूल है, तो उसने धीरे से जवाब दिया, कबूल है, हमेशा के लिए। जुरेज ने कमजोर हाथ उसकी तरफ देखा। अब कोई जुदाई नहीं अबिहा, तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी दुआ हो। अगली सुबह सूरज ने नरम रोशनी से कमरे को भर दिया। परिंदों की आवाज गूंज रही थी। अबिहा चाय बना रही थी जब अचानक उसे एहसास हुआ, कमरा गैर मामूली तौर पर खामोश है। वो भागती हुई पलटी।
जुरेज अपनी व्हील चेयर पर नीम दराज था। चेहरे पर वही सुकून, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, मगर आंखें बंद थी। अबिया के हाथों से कब गिर गया। जुरेज उठो, देखो मैं तुम्हारी चाय लाई हूं। कोई जवाब नहीं मिला। बस हवा के एक नरम झोंके ने कमरे में जलती मोमबत्ती को बुझा दिया। शाम को वही छत थी, वही चांद, और अबिया अकेली बैठी थी। उसने डायरी का आखिरी सफ़ा खोला और लिखा, वो गया नहीं, बस मुझ में समा गया है। मोहब्बत का अंजाम मौत नहीं, वो अब्दी जिंदगी है जहां यादें सांस बन जाती हैं। डायरी बंद हुई और हवा में उसकी आंसुओं की नमी घुल गई। कहानी खत्म नहीं हुई, बस लफ्ज थक गए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।